डैनियल 5 चैप्टर 6 चैप्टर हम पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा हमको फिट एंड फिक्स कीजिए। इन वचनों के अंदर हमें ईश्वरीय रचना और डिवाइन ऑर्डरलीनेस मिले और पिता परमेश्वर ये वचन हमारी समझ में आए, ये वचन के अनुसार हमारी शर्पना मजबूत बन जाए और हम परमेश्वर के लिए लाभदायी बने। हमारा जीवन नाश होने से बचाया जाए, अज्ञानता हमसे हट जाए, तेरा उजियाला हमें भरपूर मिले ताकि अंधेरे में भी पिता परमेश्वर हम तेरे मार्ग को देख पाए। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। चैप्टर 5 डैनियल चैप्टर 5 फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। चैप्टर 5 चैप्टर 6 पढ़ना है और हिंदी में हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। अभी इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ रहे हैं। बेलशाज़ार्स impious feast. First verse say, Belshazzar the king made a great feast to 1,000 of his lords and drank wine before the 1,000. Belshazzar, whilst he tasted the wine, commanded to bring the golden and silver vessels which his father Nebuchadnezzar had taken out of the temple which was in Jerusalem, that the king and his provinces, his wives and his concubines might drink therein. Then they brought the golden vessels that were taken out of the temple of the house of God, which was at Jerusalem, and the king and his princes, his wives and his concubines drank in them. They drank wine and praised the gods of gold and of silver, of brass, of iron, of wood and of stone. In the same hour came forth fingers of a man's hand and wrote over against the candlestick upon the plaster of the wall of the king's palace, and the king saw the part of the hand that wrote. Then the king's countenance was changed, and his thoughts troubled him, so that the joints of his loins were loosed, and his knees smote one against another. The king cried loud to bring in the astrologers, the Chaldeans, and the soothsayers. And the king spake and said to the wise men of Babylon, whosoever shall read this writing and shew me the interpretation thereof shall be clothed with scarlet and have a chain of gold about his neck, and shall be the third ruler in the kingdom. Then came in all the king's wise men, but they could not read the writing, nor make known to the king the interpretation thereof. Then was King Belshazzar greatly troubled, and his countenance was changed in him, and his lords were astonished. Now the queen, by reason of the words of the king and his lords, came into the banquet house, and the queen spake and said, O king, live forever. Let not thy thoughts trouble thee, nor let thy countenance be changed. There is a man in thy kingdom in whom is the spirit of the holy gods, and in the days of thy father light and understanding and wisdom like the wisdom of the gods was found in him, whom the king Nebuchadnezzar thy father, the king, I say thy father, made master of the magicians, astrologers, Chaldeans, and soothsayers. For as much as an excellent spirit and knowledge and understanding, interpreting of dreams and shewing of hard sentences and dissolving of doubts were found in the same Daniel, whom the king named Belshazzar. Now let the Daniel be called, and he will shew the interpretation. Then was Daniel brought in before the king. आपको ध्यान रखना है 10, 11 वचन, 12 वचन किस प्रकार से ये दानियल की खासियत वो बता रही है। ठीक है, 13 वचन से आगे। Then was Daniel brought in before the king, and the king spake and said unto Daniel,
art thou that Daniel, which art of the children of the captivity of Judah, whom the king my father brought out of Jewry? I have even heard of thee, that the spirit of the gods is in thee, and that light and understanding and excellent wisdom is found in thee. देखो 14th वचन डैनियल की खासियत बता रहा है. And now the wise men, the astrologers, have been brought in before me, that they should read this writing and make known unto me the interpretation thereof, but they could not shew the interpretation of the thing. And I have heard of thee that thou canst make interpretations and dissolve doubts. Now if thou canst read the writing and make known to me the interpretation thereof, thou shalt be clothed with scarlet and have a chain of gold about thy neck, and shalt be the third ruler in the kingdom. Then Daniel answered and said before the king, Let thy gifts be to thyself, and give thy rewards to another. Yet I will read the writing unto the king, and make known to him the interpretation. O thou king, the most high God gave Nebuchadnezzar thy father a kingdom, and majesty, and glory, and honor. And for the majesty that he gave him, all people, nations, and languages trembled and feared before him. Whom he would he slew, and whom he would he kept alive, and whom he would he set up, and whom he would he put down. But when his heart was lifted up, and his mind hardened in pride, he was deposed from his kingly throne, and they took his glory from him. And he was driven from the sons of men, and his heart was made like the beasts, and his dwelling was with the wild asses. They fed him with grass like oxen, and his body was wet with the dew of heaven, till he knew that the Most High God ruled in the kingdom of men, and that he appointeth over it whomsoever he will. And thou his son, O Belshazzar, hast not humbled thine heart, though thou knewest all this, but hast lifted up thyself against the Lord of heaven. And they have brought the vessels of his house before thee, and thou and thy lords, thy wives, and thy concubines have drunk wine in them. And thou hast praised the gods of silver and gold, of brass, iron, wood, and stone, which see not, nor hear, nor know, and the God in whose hand thy breath is, and whose are all thy ways, hast thou not glorified? Then was the part of the hand sent from him, and this writing was written. And this is the writing that was written. Mene, Tekel, Upharsin. This is the interpretation of the thing. Mene, God hath numbered thy kingdom, and finished it. Tekel, thou art weighed in the balances, art found wanting. Peres, thy kingdom is divided and given to the Medes and Persians. Then commanded Belshazzar, and they clothed Daniel with scarlet, and put a chain of gold about his neck, and made a proclamation concerning him, that he should be the third ruler in the kingdom. देखिए 29th वचन, उसकी तरक्की हो गई, दानियल की तरक्की हो गई. In that night was Belshazzar the king of Chaldeans slain, and Darius the Median took the kingdom, being about 62 years old. देखिए प्रार्थना के द्वारा कितना दानियल हासिल करता हुआ जा रहा है, कितना सफलता वो खींचता हुआ जा रहा है. तो प्रार्थना के द्वारा वो खोजा बनना भी उसके लिए वो रोक सकता था, लेकिन उसने उसके बारे में कुछ चिंता नहीं की. कुछ ऐसे एरिया ऑफ लाइफ है जो हमारे ऊपर शत्रु प्रबल हो जाता है और हम उसके बारे में चिंता नहीं करते हैं. तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने परमिशन दिया था, क्योंकि खोजा होना ये परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था कि इस्राएल के बंधुआई जाएंगे और उनके लड़के वाले भी बंधुआई में जाएंगे और उनको खोजा बनाया जाएगा. तो ये तो बोल दिया हुआ बात था.
इसके लिए दानियेल ने उसके बारे में प्रार्थना नहीं की। लेकिन ये तो नहीं था कि वो लोग वहाँ जाके मारे जाएंगे, ये तो नहीं था वहाँ पे। इसके लिए दानियेल के पास उतना भाग प्रज्वलित रहा और उसने मरने का समय जब आता है तब वो बराबर से प्रार्थना कर लेता था और अपने आप को छुड़ा लेता था। ओके, तो वैसे ही जहाँ जहाँ कुछ बातें हैं, जहाँ वो बादशाह को उस बोल दिया था वहाँ पर इस्राएली लोग बंधुआई में जाएंगे तो भी डरना नहीं है, वहाँ पर वो बादशाह के अधीन रहना है, उसके मान लेना है, उसको फ़ायदे का होगा ऐसा ही जीवन जीना है, उसकी सेवा अच्छे से करना है। तो ये सब तो बोल दिया था। इसके लिए वो दानियेल उसकी सहायता में भी था। ओके, नबूकदनेस्सर के और उसके बेटे की भी सहायता में था। ओके, तो इस प्रकार से जो लिखी हुई बात है इस्राएली संतानों के बारे में, वही तो आप दानियेल के बारे में देख रहे हैं कि कौन से एरिया में वो अपनी चौकसी रख रहा है, कौन से एरिया में वो अपने आप को छोड़ दिया था। वो उस एक क्षेत्र में नहीं कुछ कर पाया जिसमें वो खोजा बनाया गया। ओके, जिसमें वो पकड़वा के लाया गया, वो कुछ कर नहीं पाया क्योंकि उसके बारे में लिख दिया गया था परमेश्वर से कि इस प्रकार से होने जा रहा है। ओके, तो जब आप ऐसा अगर देखेंगे तो उस बादशाह के बारे में आप सोच सकते हैं जिसने उसके समय ख़त्म हो गया ऐसा भविष्यद्वक्ता ने आकर बताया, तो उसने जाकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना लगाई और उसने मांगा, क्या बात है परमेश्वर, मैं तो तेरी मानते हुए चल रहा हूँ और तू क्यों मुझे इस प्रकार से मेरे समय को ख़त्म करना चाहता है। तू मेरे ऊपर रहम कर, अपने समय मुझे दे ताकि मैं अपने जीवन को इस पृथ्वी पर और कुछ समय जी सकूँ। तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को मान लिया और उसको 15 साल बढ़ाकर दे दिया। हालेलुया। तो ये हो सकता था कि दानियेल अगर प्रार्थना करता तो वो बंधुआई में नहीं जाने की प्रार्थना करने के कारण, वो प्रार्थना के कारण बंधुआई में जाने से बचा लिया जा सकता है। ओके, वो प्रार्थना करने के कारण खोजा होने से बचा लिया जा सकता था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके ऊपर से हमारा ध्यान निकल जाता है, हम उसके बारे में प्रार्थना नहीं करते हैं, हम उस बंधुआई में फंसे रहते हैं। हालेलुया। लेकिन कुछ बंधुआई ऐसे हैं जिसमें से परमेश्वर जानता है कि उसको वहाँ से छूटना ज़रूरी है। ये तो मैंने कही हुई बात नहीं है, यहाँ तो उसको छूटना ज़रूरी है। तो फिर परमेश्वर हमारे अंदर ऐसा आग तूफान भर देता है कि हम लड़खड़ा कर खड़े हो जाते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं और हम उस तूफान आंधी में से जो शैतान हमारे ऊपर लगाना चाहता है उसमें से हम अपना जोर लगाकर, परमेश्वर का जोर लगाकर निकल आते हैं। ओके, तो इस प्रकार से शैतान अपनी रचना के अंदर जो परमेश्वर ने परमिशन नहीं दिया है ऐसे कुछ काम करने बैठता है, तब परमेश्वर हमको जोर देता है और हमको बोलता है नहीं नहीं, ये तो मैंने तेरे बारे में नहीं रखा है, तुझे निकलना है उसमें से बाहर। हम प्रार्थना के जोर लगा लगा कर उसमें से बाहर निकल आते हैं। हालेलुया। तो ये तरीका है प्रार्थना वीरों का। आपको दानियेल बोलेंगे तो प्रार्थना वीर आपके सामने उसका कैरेक्टर चमकना चाहिए, ठीक है, समझ में आना चाहिए। Chapter 6, Daniel is cast into the den of lions. First verse say, It pleased Darius to set over the kingdom 120 princes, which should be over the whole kingdom, and over these 3 presidents, of whom Daniel was first, that the princes might give accounts unto them, and the king should have no damage. Then this Daniel was preferred above the presidents and princes, because an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm. Then the presidents and princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could find none occasion nor fault, for as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Then said this man, तो अब इतना सीधाई खराई के साथ चलने वाला इंसान, जो सीधाई खराई के साथ अन्य जाति में भी अगर रहेगा, सीधाई खराई को मायने देने वाला, महत्व देने वाला, तो चलो कोई बात नहीं, वो मसीह नहीं है, फिर भी वो आपकी आदर कर रहा है और आपकी उन्नति को, वो प्रशंसा को वो आपको दे रहा है। ओके, तो आप उसके कारण ही उन्नति को प्राप्त करते हैं, उसके कारण ही आपके ऊपर लोगों की कृपा हो जाती है, दया हो जाती है, ठीक है, उसके कारण आपके काम बन जाते हैं, उसी के कारण ये सब कुछ होता है। तो इसका मतलब क्या बन जाता है कि हमारे साथ संगति में परमेश्वर का मन रखने वाला, अच्छा मन का अन्य जातियों के बीच में भी लोग परमेश्वर रखा है।
ओके। और यहाँ पे जब ऐसा होता है तब जलन करने वाले लोग भी आ जाते हैं। ओके, वो अन्य जातियों के ऊपर फिर जलन करते हैं, क्यों इन्होंने इनका साथ दिया, क्यों इन लोगों ने इनका काम बना के दिया, क्यों इनके जीवन में ये लोगों ने आसान करके दिया, ऐसा इन लोगों ने क्यों हेल्प किया, मरते हैं तो मरने जाने था, उनको क्यों बीच में आके बचा लिया, क्यों इसने बीच में आके सहायता किया, क्यों इसको फेवर किया, तो जलन करते हैं। ओके, तो इस समय फिर उनके प्लान्स बनने लगते हैं, प्लॉट्स बनने लगते हैं, हमको सहायता करने वालों को भी सताते हैं और हमारे बारे में भी जलन करके हमको परेशानी बढ़ाकर दे देते हैं। तो वही दानियेल के बारे में हो गया। क्या है 5 वचन से आगे? Then said this man, we shall not find any occasion against this Daniel except we find it against him concerning the law of his God। तो इसको पता था कि ये लोगों को पता था इसके बारे में, तो कुछ गलती निकालना तो मुश्किल बात है, क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर का उत्कृष्ट आत्मा है, तो वो उत्कृष्ट आत्मा उसको गलती नहीं करने देता है। तो इसका मतलब है अब वो जब पालन करता है वचन को, वो पालन करने की अवस्था में से ही उसको कुछ पकड़ना पड़ेगा कि ये हो सकता है बहुत ऊंची आवाज़ में रिकॉर्ड लगाते हैं, वचन लगाते हैं, हमको परेशानी होती, ऐसा कुछ निकालना पड़ेगा। या ये अभिषेक का तेल छिड़कती है, हमको अच्छा नहीं लगता है, यहाँ वहाँ पे फैला रहता है, ऐसा हो सकता है। जबकि उनके देखो तो यहाँ वहाँ सारे चिथड़े पड़े रहते हैं, है ना, यहाँ वहाँ से देखेंगे तो इधर गंदा उधर गंदा, कुछ छिड़काया हुआ रहता है। ओके, दीवार पे छिड़काया रहता है, ज़मीन पे छिड़काया रहता है। तो उनका इतना ही रहता है कि आपका दोष मिल नहीं रहा है, तो आप जो प्रार्थना के आपका जो पवित्र जीवन जीने के तरीके हैं उसके बारे में वो फैसला करते हैं कि ये ना ये ऐसे ऐसे करती है, इसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है, ये ऐसे ऐसे कर रही है, इसकी वजह से हमको इसका कंप्लेंट है। ओके, तो उनके पास दूसरा कंप्लेंट करने का रास्ता नहीं है इसकी वजह से। ओके, देन दिस प्रेसिडेंट्स एंड प्रिंसेस assembled together to the king and said thus unto him, King Darius, live forever. All the presidents of the kingdom, the governors and the princes, the counselors and the captains have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree that whosoever shall ask a petition of any god or man for 30 days save of thee, O king, he shall be cast into the den of lions. Now, O king, establish the decree and sign the writing, that it be not changed according to the law of the Medes and Persians, which altereth not. Wherefore King Darius signed the writing and the decree. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. Then these men assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. Then they came near and spake before the king concerning the king's decree. Hast thou not signed a decree that every man that shall ask a petition of any god or man within 30 days, save of thee, O king, shall be cast into the den of lions? The king answered and said, The thing is true according to the law of the Medes and Persians, which altereth not. Then answered they and said before the king, Then Daniel, which is of the children of the captivity of Judah, regarded not thee, O king, nor the decree that thou hast signed, but maketh his petition 3 times a day. Then the king, when he heard these words, was sore displeased with himself, and set his heart on Daniel to deliver him. And he labored till the going down of the sun to deliver him. Then these men assembled unto the king and said unto the king, Know, O king, that the law of the Medes and Persians is that no decree nor statute which the king established may be changed. Then the king commanded, and they brought Daniel and cast him into the den of lions. Now the king spake and said unto Daniel, Thy God, whom thou servest continually, he will deliver thee.
हालेलुया। क्योंकि शद्रक मेशक अबेदनेगो के बारे में नबूकदनेस्सर को ये जानकारी हो चुकी कि अब ये लोग बचाए गए हैं आग में से, तो अब उसका बेटा जो है वो जो अभी बादशाह है, अब वो क्या कर रहा है, वो भी इसी प्रकार से जो अभी राज्य कर रहा है वो भी उसको इसी प्रकार से बोल रहा है, डोंट वरी, तेरे बारे में तो किया है, तेरे विरोधियों ने तो काम तो कर दिया है, मुझे भी उसमें शामिल कर लिया है, लेकिन चिंता मत कर, तेरा परमेश्वर तुझे छुड़ा लेगा। क्योंकि ये तेरी गवाहियाँ हमने बहुत सालों से सुनते हुए आए हैं कि तेरा परमेश्वर तुझे छुड़ा लेता है, तो कोई बात नहीं है, चलो मुझे भी शामिल कर लिया तेरे विरोधियों ने, मेरे भी मंजूरी ले ली कि मैंने भी तेरा विरोध करना है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास तो कॉन्फिडेंस है कि तेरा परमेश्वर तुझे छुड़ा लेगा। हालेलुया। देखिए 17 वचन 17 वर्स, एंड अ स्टोन वॉज ब्रॉट एंड लेड अपॉन द माउथ ऑफ द डेन एंड द किंग सील्ड इट विथ हिज ओन signet and with the signet of his lords, that the purpose might not be changed concerning Daniel. Then the king went to his palace and passed the night fasting. Neither were instruments of music brought before him, and his sleep went from him. हालेलुया। यहाँ पे बादशाह की हालत थी अभी अलग से, क्योंकि ये तो परमेश्वर ही था अब उसको बचाने के लिए, है ना, बादशाह भी कुछ नहीं कर सकता था, अब तो परमेश्वर की ही करामत दिखाई देनी है। तो ये ऐसा परमेश्वर हमारा काम करता है, लोगों के अंदर आत्मविश्वास देता है वो। ओके, डोंट वरी, किया तो किया, हुआ तो हुआ, डोंट वरी, परमेश्वर बचा लेगा हमको। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, Then the king arose very early in the morning and went in haste unto the den of lions. And when he came to the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel. And the king spake and said to Daniel, O Daniel, servant of the living God, is thy God, whom thou savest, continually able to deliver thee from the lions? Then said Daniel unto the king, O king, live forever. My God hath sent his angel, and hath shut the lions' mouths, that they have not hurt me for as much as before him. Innocence was found in me, and also before thee, O king, have I done no hurt. Hallelujah. Then was the king exceedingly glad for him, and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no manner of hurt was found upon him, because he believed in his God. Hallelujah. देखा तो उसकी करामत होना, उसका चमत्कार होना, उसके अंदर कुछ चेंजेस आना, उसका स्तर क्या था माय डियर फ्रेंड्स, आप याद रखिए, प्रार्थना उसका स्तर था, हर समय का प्रार्थना उसका जंग जीतने का सीक्रेट था। और उसकी प्रार्थना भी देखो, वो खोजा बन रहा था तब भी उसने प्रार्थना नहीं किया, वो बंधवा करके लेके जाने वाला था तब भी उसने प्रार्थना नहीं किया। ओके, और उसने सिर्फ प्रार्थना किया कि अब क्या है पता नहीं, आगे अब जाना तो पड़ेगा, अब क्या होगा पता नहीं, परमेश्वर हमारी सहायता कर। तो इस प्रकार से है, जहाँ पर परमेश्वर का बोल लग चुका है वहाँ पर हमें आराम है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है हमसे क्या हो रहा है। ओके, लेकिन जहाँ पर परमेश्वर जानता है ये तो मैंने नहीं कहा था, तो अगर कोई शत्रु की चालाकी ऐसा कुछ करने जाती है तब झपट मारता है परमेश्वर, चमत्कार दिखा देता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमारे प्रार्थना जीवन के अंदर के समय हमको समझ में आना चाहिए। कभी कभी हम झपट मार के प्रार्थना लगा देते हैं, कभी कभी आराम की प्रार्थना रहती है, कभी कभी तो प्रार्थना ही नहीं रहती है, कभी कभी तो प्रार्थना रहती है लेकिन क्या बोला और क्या नहीं बोला कुछ समझ में ही नहीं आता है। ओके, तो हमारी हर प्रार्थना के अंदर का असर अलग अलग इसीलिए होता है क्योंकि जैसा शत्रु का काम वैसा हमारा परमेश्वर हमारे अंदर से चलाता है हमको। हालेलुया। देखिए क्या है, देन वॉज द किंग एक्सीडिंगली ग्लैड फॉर हिम एंड कमांडेड दैट दे शुड टेक डैनियल अप आउट ऑफ द डेन। सो डैनियल वॉज टेकन अप आउट ऑफ द डेन एंड नो मैनर ऑफ हर्ट वॉज फाउंड अपॉन हिम बिकॉज ही बिलीव्ड इन हिज गॉड। हमारा विश्वास काम करता है भाइयों, ध्यान रखिए। एंड द किंग कमांडेड एंड दे ब्रॉट दोस मेन विच हैड अक्यूज्ड डैनियल एंड
they cast them into the den of lions. Then their children and their wives and the lions and the mastery of them, and break all their bones in pieces, or ever they came at the bottom of the den. Hallelujah. Then King Darius wrote unto all people, nations, and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied unto you. I make a decree that in every dominion of my kingdom men tremble and fear before the God of Daniel, for he is the living God and steadfast forever, and his kingdom that which shall not be destroyed, and his dominion shall be even unto the end. He delivereth and rescueth, and he worketh signs and wonders in heaven and in earth. Who had delivered Daniel from the power of the lions? So this Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian. आपको बहुत बड़ा लेसन है दानियल के विषय में, ओके? हम सबको बहुत बड़ा लेसन है। परमेश्वर का काम देखने का जरिया आपको मिलता है दानियल के लाइफ में से। कितना प्यारा अनुभव परमेश्वर, उसके प्रार्थनाओं का करना नहीं करना, कहाँ पर उसने क्या प्रार्थना किया, तो वही उसके जीवन में दिखता है। हालेलुया। तो वही उसके जीवन की कहानी बन जाती है। जो आप प्रार्थना करते हैं ना, वही आपके जीवन की कहानी बनती है, स्टोरी बन जाती है, हिस्ट्री बन जाती है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से दानियल नामक पुस्तक। प्यारा वचन है दानियल का। थैंक यू जीसस। प्रार्थना वीर था वो, ओके? प्रार्थना के बल के ऊपर उसने जंग को जीतता आया आगे। इतना ही नहीं, उसने उसके 70 साल के पूरे होते ही अपने आप को छुड़वा भी लिया अपने लोगों के साथ, ओके? इतना ही नहीं, उसने इतने सारे सीक्रेट और भेद परमेश्वर से ले लिए कि परमेश्वर को बोलना पड़ा, भाई पुस्तक बंद करके रख दे, सील लगा दे उसके ऊपर, ओके? ये अभी नहीं खुलनी है, ओके? इतना भेद उसने इकट्ठा करके ले लिया था। क्या प्यारा वचन है परमेश्वर का। ये दानियल ज़बरदस्त इंसान है। आई सल्यूट हिम। ज़बरदस्त है वो, ओके? उसके बारे में विश्वास का जीवन उसका देखना ज़बरदस्त है। हालेलुया, हालेलुया। आशीषित करे परमेश्वर हमको ऐसे कैरेक्टर से, आशीषित करे। इस प्रकार का हिया और विश्वास हमारे अंदर भर दे परमेश्वर, नासरी यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। दीवार पर लिखा गया लेख, 5 अध्याय और 6 अध्याय हम पढ़ेंगे हिंदी BSI बाइबल में से। दानियल की पुस्तक 5-6 अध्याय। दीवार पर लिखा गया लेख, 5 अध्याय, पहले वचन से। बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाखमधु पिया। दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगा। वे दाखमधु पी पीकर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर के दीवार के चुने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया, और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए, और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द में पुकार कर तंत्रियों और कसदियों और अन्य भावी बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बेबीलोन के पंडित पास
आए। तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसे बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को न पढ़ सके और न राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया और भयातुर हो गया, और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में न घबरा और न उदास हो। तेरे राज्य में दनियल नामक एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरे पिता जो राजा था, उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह उसका अर्थ बताएगा। ये सारी खासियत दानियल के चरित्र के बारे में लिखा है। आपको ध्यान रखना है उसके चरित्र की कैसी वाहवाही हो रही थी। लेख का अर्थ बताया जाना 13 वचन से आगे। तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है, और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि यह लिखा हुआ पढ़े और उसका अर्थ मुझे बताए, परंतु वे उस बात का अर्थ न समझा सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो तुझे बैंजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख, और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा, और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। हे राजा, परम प्रधान, परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था, और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वह चाहता उसे वह घात करता था, और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था। जिसे वह चाहता उसे वह ऊंचा पद देता था, और जिसको वह चाहता उसे वह गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वह मनुष्यों में से निकाला गया, और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया। वह बैलों के समान घास चरता, और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगा करता था।
जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया, और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता, जो न देखते, न सुनते, न कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति की। परंतु परमेश्वर, जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। तब ही यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है, और वे शब्द लिखे गए हैं। जो शब्द लिखे गए हैं वे ये है: मने मने तकेल और ऊपर सीन। इस लेख का अर्थ यह है: मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिन कर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तो मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया है। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादिया और फारसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी, और दनियल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई, और ढिंढोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दनियल ही प्रभुता करेगा। उन्नति कर दी देखो दनियल की। ओके। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया, और दारा मादी, जो कोई 62 वर्ष का था, राज गद्दी पर विराजमान हुआ। दनियल सिंहों की मांद में। दारा को यह अच्छा लगा कि 6 अध्याय पहले वचन से, दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दनियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे, और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दनियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दनियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तो युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हकीमों, अधिपतियों और न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पात्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फरसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदला न जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियों यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली में से आकर दनियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसा आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा?
राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फरसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियेल है उसने, हे राजा, न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियेल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। हालेलुया। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फरसियों में यह व्यवस्था है कि जो जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियेल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियेल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड़हे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियेल के विषय में कुछ बदलने न पाए। तब राजा ने अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड़हे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड़हे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियेल से कहा, हे दानियेल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगायुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियेल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियेल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियेल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढों में डाल दिए जाए और वे गड्ढे के पेंदी तक भी न पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। कितना पावरफुल प्रेयर वॉरियर है ये दानियेल। वाट लगा दिया उसने उसके चुगली खाने वालों का। 25 वचन से आगे, तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियेल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानियेल, दारा और कुस्रू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। हालेलुया। देखो, उनके राज्य भिन्न जातियों के थे। आज हम भी जो अन्य जातियों के बीच में रहते हैं, प्रॉब्लम कहाँ पर है? हम निश्चित है कि कहीं ना कहीं बंधुआई में डाले जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कुछ ना कुछ परेशानियाँ रहती है, लेकिन हमारे पास भी दानियेल जवाब के रूप में खड़ा है। ओके, क्या है उसके पास? हथियार कौन सा है? प्रार्थना करना। ओके, हथियार आप देखिए, आपके पास हथियार है, आप उस हथियार का कैसा इस्तेमाल करते हैं, आपके इर्द गिर्द में आपको वही माहौल मिलेगा। ओके, और दानियेल रुका हुआ नहीं था, वह एक के ऊपर एक तरक्की लेता हुआ जा रहा था। जब वो हथियार इस्तेमाल कर रहा था, हथियार इस्तेमाल हो जाने के बाद में, प्रार्थना हो जाने के बाद में कुछ संकट बादशाह के ऊपर आता था। बादशाह को दानियेल के अलावा कोई आंसर नहीं मालूम पड़ता था, दानियेल ही को बुलाना पड़ता था और दानियेल आंसर देता था और दानियेल की उन्नति हो जाती थी। ओके, तो
आपके फेवर करने वालों के ऊपर परेशानी आ जाती है और आप उसके हल कर देते हैं, आप उनके जो मन के अंदर आपको ऊंचा पोजीशन देना है, आप उस पोजीशन में, आपको उन पोजीशन में वो बिठा देते हैं। ओके, अगर आप परमेश्वर के द्वारा काम करते हैं, परमेश्वर के सामने अपना समय बिताते हैं, तो आपके सामने जो ऊंचे पोजीशन पर है, जिसके पास अधिकार है आपको ऊंचे पोजीशन पे रखने का, उसके लिए आप काम कर दोगे और वो आपके ऊपर मन लाएगा, आपके ऊपर खुश हो जाएगा, आदर करेगा और आपको ऊंचा पोजीशन वो दे देगा। तरक्की का रास्ता देखिए आप, परमेश्वर कैसा तरक्की का रास्ता देता है। और फिर बाद में उस राज्य के अंदर उसके अधिकारियों के बीच में वो अन्य जातियों के मध्य में बैठ के सुख और चैन से जिया। ये उसका रिजल्ट है वहाँ का। अन्य जातियों के बीच में जहाँ उसके ऊपर जलन करने वाले लोग हैं, जहाँ उसको कुयुक्तियाँ बनाकर, योजनाएं बनाकर, युक्तियाँ बनाकर उसको फंसाने वाले लोग हैं, इसके बीच में कहा है कि वो चैन और सुख से रहा। हालेलुया। आपको ध्यान रखना है कि हमको बहाने नहीं बनाना है कि हमारा क्या है, कहाँ है, कैसा है, कुछ नहीं देखना है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम उस जगह के अंदर सब कुछ हमारे फेवर में बदलने की ताकत रखते हैं। सिर्फ करेंसी क्या है? प्रार्थना करना, विश्वास रखना, प्रार्थना करना, विश्वास रखना, प्रार्थना करना, विश्वास रखना। ऐसा कुछ माहौल हो जाता है हमारे इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर कि उनको हमारे प्रार्थना की ज़रूरत लग जाएगी, हमारे अंदर के टैलेंट की ज़रूरत लग जाएगी, हमारे अंदर के जो परमेश्वर की ओर से हमारे अंदर रखा हुआ है उस बात की उनको ज़रूरत लग जाएगी। और जैसे ही हम उनको देंगे तो वो अपने परेशानी से बाहर आएंगे और उनके पास अधिकार है आपको ऊंचा पोजीशन देने का, वो आपको वो पोजीशन पर बिठा देंगे। हालेलुया। आप देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये ऐसी बातें हैं। ओके, प्रार्थना वीरों के विषय में ये ऐसी बातें हैं। तो हम अगर नौकरी करते हैं, हम अगर कहीं बिजनेस चला रहे हैं, अगर हम कोई घर परिवार में हैं और हमारा कोई कहीं पर भी कैसा भी जीवन चल रहा है, प्रार्थना वीर बनना हमारा मकसद बनाना है। ओके, नासर यीशु के नाम में हम दानियल के जैसा प्रार्थना वीर होने का अभिषेक प्राप्त करें। आमीन। और हमारे लिए उन्नति के रास्ते देने वाले लोग हमारा सामना करें और हमारे सामने परमेश्वर उनको चंगाई दे, हीलिंग दे, उनको तरक्की देने वाले स्थान में परमेश्वर उनके द्वारा हमको रिलीज़ करे, तरक्कियों की जगहों में हमको रिलीज़ करे। नासरी यीशु के नाम में हमारे साथ सुख और चैन का आशीष भरा हुआ वातावरण बना रहे, अन्य जातियों के बीच रहते हुए भी। धन्यवाद पिता परमेश्वरी। हमें फिट एंड फिक्स करें इन वचनों के आधार से, हमें ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आप पवित्र आत्मा विनती करते हैं यीशु नासरी के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 18 chapter 1 verse 9 verse, 2 Chronicles 11 chapter 12 chapter। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 18 1 वचन से 9 वचन तक। इतिहास की दूसरी पुस्तक उसके 11 अध्याय 12 अध्याय। हम अपने अकेले में बैठकर ये वचनों को, अध्यायों को पढ़ने जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? हम चाहते हैं परमेश्वर अकेले में बैठकर हमारे व्यक्तिगत जीवन को, हमारे पर्सनालिटी को चेंज करे, जैसा उसको चाहिए उस रूप, उस ढलान में परमेश्वर हमको ढल कर लाए, ताकि हम परमेश्वर के लिए लाभदायी बने। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के लिए, उसके राज्य के लिए हम लाभदायी बने। हालेलुया। तो ये हमारा फैसला है, व्यक्तिगत में हमने ये वचनों को पढ़ने के फैसले किए हैं। लेकिन आप उसे कैसा पढ़ना चाहते आपके ऊपर है, आप अपने तरीके से उसे पढ़ सकते हैं। आमीन। हम ये प्रार्थना, ये विनती जब हम कर रहे हैं तो हम इसके अनुसार ढलते भी जा रहे हैं। तो हम 2 साल का बाइबल रीडिंग अकेले में बैठकर जब पढ़ेंगे तो उसके अनुसार हमारा व्यक्तिमत्व निखर कर आएगा। और निश्चित है पवित्र आत्मा हमारे अंदर मौजूद है हमें उसके वचन सिखाने के लिए। तो हमने निश्चित परमेश्वर के आत्मा का लाभ उठाना है। और प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हम विनती करते हैं हमें ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। हमें
फिट एंड फिक्स कीजिए तेरे वचनों के आधार से। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।